नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर जेता और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस। साथ में आप हमें सुन पा रहे हैं स्टाइल रेडियो 90.4 एफएम चैनल पे। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हमें लगभग 2-3 वर्ष हो गए और 2-3 वर्ष पहले हमने एक मुहिम की शुरुआत की थी, एक आंदोलन की शुरुआत की थी, एक आह्वान किया था, एक सोच थी और वो ये थी कि हम इस क्षेत्र में स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक ऐसा मंच निर्मित करें जहां पर हम अपनी बातों को, कुछ ऐसे विषय को स्टूडेंट से संबंधित, देश से संबंधित ऐसे विषयों पर आके परिचर्चाएं करें और इसके अंतर्गत हम व्यक्तित्व का विकास भी कर सकें, इंग्लिश हिंदी में बोलना भी सीख सकें और साथ में अपनी बात को दुनिया के समक्ष रख भी सकें। इस क्षेत्र के कई लोग शामिल हुए। देखते देखते सैकड़ों बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे आए और अपनी अपनी बात को रखकर चले गए। बहुत सारा लंबा समय निकल गया और आज हमने लगभग 100 एपिसोड पूरे किए। मैं आपको यह भी बता दूं कि इसे रेगुलर हर संडे को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टाइल रेडियो 90.4 एफएम चैनल, जिसके डायरेक्टर हैं श्री सुरेंद्र गुप्ता जी, के माध्यम से और बुंदेलखंड एक्सप्रेस जैसे इंपॉर्टेंट न्यूज पोर्टल के माध्यम से हम अपनी बात को अपने छात्रों के साथ और कुछ विशिष्ट अतिथियों के साथ लोगों तक पहुंचाते रहे। ये बड़ा गर्व का विषय है कि आज हम इसके 100 एपिसोड पूरे कर रहे हैं और इस 100 एपिसोड पर आज फिर एक नए विषय लेकर हम आपके समक्ष आए हैं। लेकिन जो विचारधारा हमने बनाई थी कि हम एक अभियान को लेकर चलेंगे, जनता के बीच आएंगे, शिक्षा को घर घर तक पहुंचाएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे कि हमें सोचना है, समझना है, बातचीत करनी है, सीखना है, हम इसमें बहुत हद तक कामयाब हुए। इतनी दूर चलकर लेकिन इसलिए नहीं आए कि हमें यहीं तक आना था, हमें और इसके आगे जाना है और हम कोशिश करेंगे। और हम ऐसी स्थिति में अपने समस्त दर्शकों का, अपने समस्त श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि अब तो इस क्षेत्र और इस प्रदेश से बाहर से लोग भी इसमें शामिल होने लगे। तो इसी तरह से हमें देखते रहिए, हमें सुनते रहिए और हमारे साथ होकर इस डिबेट को हर रविवार सुने। जो परिचर्चा है ये बहुत महत्वपूर्ण परिचर्चा। आज की परिचर्चा है, कैन AI replace teachers? We have seen over the past few years that AI has rapidly invaded, intruded in our system, and we have become almost the assistant of AI. We have been taking, all kinds of help and support from AI to perform our work and duties, and slowly we are becoming slaves. If so, this is the question here, is whether we have become slave to AI or we have already seen that teachers have replaced and the AI has replaced the teachers. We are going to discuss it, whether it is true or not. So first we have the discussion with Manish Soni on the platform. Manish. Yes sir, it is very good and nice topic that can AI replace teachers. But sir, I think that maybe in future it is possible, it will possible. But as far as the present position is concerned, I think AI can be a good assistant. But it cannot replace a teacher, because somewhere or the other, for a teacher, I think that the initial, part of that, the inspiration, mentorship, their, way of speaking, way of interaction with the students. I think these all things is also important, because as far as the knowledge is concerned, I think that since long time we have seen that in books we have too many knowledge. But who can teach us? Teachers can teach us that knowledge. They can make us understand that you know that what is going on in this world and what all happened in this world. So somewhere or the other, maybe in future it will possible that AI can replace teacher. But as far as the present condition is concerned, it can become assistant, not a teacher. We can say that teacher plus AI, it will become a good combination. But teachers versus AI, it could not be possible. Means teachers will remain teachers, and because we have already knowledge exists
existing in our world, you need a person or you need a technique to transfer that knowledge to the students in a better way. This is what basically is. So as per you, AI cannot replace teachers. Teachers will remain teachers. AI will only do the work of an assistant. Okay, let's see what Palak has to speak on this. Palak. सर मुझे लगता है कि एआई टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकती, बट जो टीचर एआई का यूज कर रहे हैं वो जो टीचर एआई का यूज नहीं कर रहे उनको जरूर रिप्लेस कर सकती है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी जो बनाया भी इंसान ने है और वो एक असिस्टेंट अच्छा बनती है, सर ने बोला। पर मुझे लगता है जैसे कि अगर अपन डाटा के अकॉर्डिंग जाएं तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है द फ्यूचर्स ऑफ जॉब, तो उसमें दिया है कि 40% जो टीचर्स की जॉब है वो एआई ओवरकम कर सकती है, क्योंकि एक हाइपर पर्सनलाइज मॉडल होता है एआई का कि अगर एक 40 बच्चों की क्लास है तो टीचर हर किसी पे इक्वल ध्यान नहीं दे सकता। अगर उसके एक किसी का लेवल है जो वो थोड़ा लेट समझता है तो टीचर को दिक्कत होगी वहां पे, क्योंकि बच्चे बाकी सब जल्दी कैच करते हैं। बट जो एआई है वो पर्सनलाइज, उसको अगर धीमी स्लो है उसकी अंडरस्टैंडिंग की तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज कर लेगा। तो वो जो मॉडल है वो आई थिंक लगता है कुछ टाइम में अगर टीचर अडॉप्ट कर लेते हैं कि वो हर कोई पर्सनलाइज ध्यान दे पाए तो शायद वो चीज ना कर पाए, बट हाँ 90% चांसेस हैं। मतलब कुल मिला के आपका कहना यह है कि एआई इज ए टीचिंग टूल, उसको हम टीचिंग टूल के रूप में लें, इसको टीचर के रूप में नहीं लें। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पहले हमारे पास लैपटॉप था, कंप्यूटर था, इंटरनेट था, तो उससे भी नॉलेज मिलते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वही हमारा टीचर बन जाए। उसका जो इस्तेमाल करेगा वो मास्टर करेगा, जो इस्तेमाल नहीं करेगा वो सिस्टम से बाहर होगा। ओके, लेट्स स्विच ओवर दिस साइड टू भूमि एंड सी व्हाट भूमि हैज टू स्पीक ऑन इट। भूमि सर, आई बिलीव दैट AI will replace teacher in the future with the advancement of artificial intelligence. The AI is becoming more smarter and more efficient, and AI work with a consistency without getting tired or emotional. Like for example, in Japan, the humanoid robot like Saya is being used to teach several languages, and it also teaches the basic subject. So it proves that AI is already being used. AI is already being used. It's not an imagination, it's becoming a reality. But when you say this, Bhumi, there is a question also here, that do you think that teacher has the single role of teaching only? No sir, I think that replacement doesn't mean that teachers will disappear. Replacement means that it will take over some task of teacher. Okay, it will take over some task of teacher. So this is one of the statements, and we'll discuss in the long run or in the shorter run also that how the implications of these things would take place in future. But prior to that, we have other people on our platform for debate. So let's see what Aparna has to speak on this. Aparna, what's your? Yes सर, एआई जो है इसके टीचर्स पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट है। अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखें इसके, तो टीचर एआई के थ्रू बच्चों को कई टास्क में हेल्प कर सकते हैं, और जो उनके टाइम सेविंग जैसे कि अटेंडेंस है, उनका होमवर्क है, इन सारी चीजों को चेक करने में, प्लान और डिसीजन बनाने में इसमें हेल्प कर सकता है। और टीचर्स एआई के थ्रू बच्चों के जो जो न्यू बच्चों को जो नया नॉलेज दिया जाता है, जो नॉलेज दिया वो भी हेल्प कर सकता है। और दूसरा जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि बच्चों की जो डिपेंडेंसी है वो एआई पर ज्यादा बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू टीचर्स। क्योंकि बच्चे स्कूल जाना बहुत कम कर देंगे, क्योंकि सब कुछ उनको एआई फोन में अवेलेबल होगा, तो टीचर की डिपेंडेंसी उन पर उतनी नहीं होगी, वो उसको कम कर देंगे। बच्चे बहुत ज्यादा लेजी हो जाएंगे, टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, उनकी क्रिटिकल जो एनालिटिकल थिंकिंग वो कम हो जाएगी। तो इसके ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट है, लेकिन एआई टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट है, बट ये इम्पैक्ट ज्यादा है कि एआई किसी भी हालत में टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। Sir, I think in my opinion, teachers does much more than providing information. He is a guide by side. There is a saying that teacher is not a sage by a stage, but a guide by side. Sir, teacher does much more than providing information. He guides them, he encourages them, boosts their moral values. I do not think, sir, that AI have a potential
to connect with human, as we know that such a bond create with teachers and students, and that bond help them to understand each other, to convey their feeling, to कम्युनिकेट एंड अपनी बात अच्छे से रख पाना। वो एक फीलिंग जो बॉन्ड होता है हमारा टीचर के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट मनीष? देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, एंड दिस बॉन्ड इज अ यूनिक सिस्टम ऑफ डेवलपिंग स्टूडेंट्स, बट व्हेन वी टेक एआई इनटू एग्जांपल इट बिकम्स बॉन्डेज। ये एक तरह की स्लेवरी है, ये एक प्रकार का डिपेंडेंस है, उसके बगैर हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। ये दोनों में बेसिक अंतर है। सर ये बात तो है, लेकिन मैं थोड़ा सा अपनी बात से खुद डिफर करूंगा कि एक फिल्म आई थी सर, नया दौर। सर उस समय उस फिल्म में सर जो लड़ाई थी वो घोड़ा गाड़ी और मोटर के बीच में थी। बताया जाता था घोड़ों के साथ अच्छे अटैचमेंट रहता था और बहुत सारे फायदे गिनाए गए थे, लेकिन एटलीस्ट हुआ क्या कि जो मोटर गाड़ी है उसने उनको रिप्लेस कर दिया। तो सर तकनीक के साथ हमें अपडेट तो रहना पड़ेगा, लेकिन हम ये मान के चले अगर कॉम्बिनेशन बना के चले इमोशन और प्रैक्टिकल दोनों का, देन वी कैन गेट सक्सेस। इफ वी गो ओनली वी विल बी हार्डकोर टुवर्ड्स emotion connectivity, then definitely we will lagging behind. Because I have seen in out of India, AI has become a necessary part. मेरे कुछ दोस्त हैं अमेरिका में, अक्सर उनके मेरे पास मैसेज आते हैं कि बेटे का ये प्रोजेक्ट इसको सब्सक्राइब कर लो, बेटे की ये इंस्टा आईडी इसको सब्सक्राइब कर लो, ये उन्होंने ऐप डेवलप किया। क्यों तुम लोग आए दिन परेशान करते? देयर प्रोजेक्ट इन स्कूल and they have to develop this kind of apps and this kind of site for their study, and how many subscribers are there, they get marks on basis of this condition. So I think that this kind of study have started outside of India. Definitely one day we will have to shift on it. मनीष, लेकिन जब आप कह रहे हो क्या कि एक नए दौर फिल्म था जिसमें कि बैलगाड़ी को रिप्लेस कर दिया घोड़ा गाड़ी ने या कार ने रिप्लेस कर दिया, तो ये तो हम हमेशा जानते हैं कि तकनीक को रिप्लेस करेगा, तकनीक इंसान को रिप्लेस नहीं करेगा। क्योंकि आपने यदि रोबोट बना दिया तो रोबोट सारा काम इंसान का करेगा, लेकिन वो सब काम इंसान का नहीं करेगा जो इंसान करेगा। मुझे तो लगता है कि इंसान अपने युग का सबसे बड़ा साइंटिफिक क्रिएशन है, इससे बड़ा साइंटिफिक क्रिएशन। लेकिन तकनीक को कंप्यूटर को रिप्लेस कर देगा, कहीं लैपटॉप को रिप्लेस कर देगा कोई और बड़ा सिस्टम। सो सिमिलरली टेक्नोलॉजी कैन रिप्लेस ए टेक्नोलॉजी, but technology cannot replace a human being. Yes, sir, I know it. It's very true that technology cannot replace human being. But what happened in India? Indian peoples are very emotional people. They always they yes or no. They don't want to be in middle way. या तो चाहिए या कुछ भी नहीं चाहिए। जब कंप्यूटर जो लॉन्च हुआ था हिंदुस्तान में तो बहुत विरोध किया गया था कंप्यूटर का कि ये इंसानों की नौकरी खा जाएगा, ये ऐसा। लेकिन आज कंप्यूटर के बिना हम लोग एक कदम नहीं चल सकते। तो ये हम लोग को हैबिट अपनी बदलनी पड़ेगी कि या तो ये चाहिए या तो इसे नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन भी काम कर सकता है। कुल मिला के कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छी तरह से कुल मिला के बात ये है कि समय के साथ हमें खुद चेंज करना है, चीजों को मास्टर करना है, टेक्नोलॉजी को मास्टर करना है। अदरवाइज जैसा कि पलक ने कहा था कि हम पीछे रह जाएंगे, हमें रिप्लेस तो नहीं कर पाएंगे, वो हमें रिजेक्ट कर देगा सिस्टम से। चलते हैं गौरव से बात करते हैं। अभी गौरव और हरि हमारे पास हैं इस प्लेटफॉर्म पे। लेट्स सी व्हाट गौरव हैज टू स्पीक ऑन इट। सर मेरा ऐसा मानना है कि एआई टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि टीचर्स ना केवल विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं बल्कि स्टूडेंट्स के साथ उनका एक इमोशनली पर्सनली एक बॉन्ड होता है जो वो टीचर्स स्टूडेंट को समझ सकते हैं। इसके अलावा टीचर्स खुद कभी स्टूडेंट रहे हैं तो वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं जो उन्हें इंस्पायर करते हैं, उसे डिसिप्लिन में रखते हैं। सर इसके अलावा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक फॉर कोऑपरेशन डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट आती है, उसमें 2.80 टीचर्स और प्रशासकों पर एक रिसर्च की गई। उसमें पाया गया कि 1/3 टीचर्स और प्रशासक जो हैं वो अपने काम को करने के लिए एआई का यूज करते हैं, जिससे कि वो अपने काम को और इफेक्टिव बना सके और क्रिएटिव बना सके ताकि उनका काम और व्यवस्थित रूप से हो सके। तो मेरा ऐसा मानना है कि एआई टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता बल्कि टीचर्स के काम को और व्यवस्थित रूप से करा
आ सकता है। हरी, यस sir, all of us said truly AI cannot replace the teachers, because sir, AI is a learning mode and he has knowledge, but he do not have enough knowledge. And I was also discussing with Gemini, and I was saying and I have discussed in one subject of history, and he has said Ashoka is the great, and I said why, and they are not have any others rulers who is a great, and why their work and some other things. He do not have an answer. He was asking to me if there have any rulers, so give me all. And so that we can say AI cannot replace the teacher, because teachers also connect with emotionally, and if they can solve their doubt. And so most of the times student cannot able to understand so many things which AI is providing, but teachers can easily understand to teachers, and this is right and this is wrong. And most of the times I'm also a teacher, and I have seen my students said if anything will not able to understand, I'll ask to ChatGPT and AI. And AI also are misguiding the students, and they are not providing good knowledge, and after that teachers will have to filter that knowledge. Yes. So I want to share one of my experience that in a one voice of my college life, for past 3 years I've been using AI for my studies. So it already is replacing certain function of teaching. What do you think about this? I personally think that AI cannot and will never be able to replace teachers. See, those teachers who are not capable enough of teaching those materials and they borrow it from AI, it is easily seen that it is not his. And remember one thing, in AI now there is a check also. There is a check of plagiarism. A person who does not know English at all and he suddenly starts writing everything in English, and that too in good English, people have a doubt that this teacher does not know English and how he is writing all those things in English. So there is a theory of doubt also. There are 2-3 things which I would also like to say. That you see, there are what do you mean by teacher? A teacher is merely taken as a teacher of a subject who goes to the class, teaches and comes back. No, he is not a teacher. A teacher is a one who is your mentor, who looks after your development, है ना, द ओवरऑल डेवलपमेंट, जो पूर्ण रूप से आपके सार्वभौमिक विकास की ओर प्रयास करता है। तो आपका बोलना, आपका बात करना, आपका उठना, नैतिकता, अनुशासन, डिसिप्लिन, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच इन्वॉल्व्ड अपार्ट फ्रॉम along with the teaching. But when it comes to AI is strictly within the subject. AI will not go into other fields which are very, very important. Why do you go to school? It's not only to learn something. It is also to learn so many things in the name of morality, in the name of, discipline, in the name of your duties, your rights. So all these things together make a teacher. So can AI replace this teacher? I have a doubt. Sir, AI only providing good knowledge, and AI is solving the doubt of student, and they are providing MCQs, good questions, and some other multiple answers, fast answers, all these things. But they never replace the teacher. Okay, I'll just come to you. Yes, Palak, you were telling something? Yes, sir. जैसे कि आपने बोला कि AI जो टीचर होता है आपके अंदर वैल्यूज, नॉर्म्स वगैरह भी प्रोटेक्ट करता है। उस चीज पे हम भारत एक ऐसा गौरवशाली उसका इतिहास रहा है कि जो हनुमान जी थे, जो वर्तमान के भगवान कहते हैं, उनके अंदर सेल्फ सफिशिएंट नॉलेज था और कैपेबिलिटीज थी उनके अंदर, बट उनको भी जामवन की जरूरत पड़ी थी। जब जामवन ने बताया था उनको कि आप किस उद्देश्य के कारण यहाँ पे आए हैं, तो भगवान होने के बाद भी जब जामवन उनके मेंटर बन के आए, उनको बताया गया कि आपको क्या करने के लिए है, आप राम काज के लिए यहाँ पे आए हैं। उसके बाद उनके अंदर वैल्यूज वगैरह आई कि हाँ मैं राम काज के लिए आया हूँ और मेरी क्या एक पर्सनल जो चीजें हैं, जो मेरी एक मोटिव अपनी लाइफ का, वो बता पाए। तो जब भगवान को जरूरत पड़ी है एक मैंने तो कहीं ये भी पढ़ा है, आई डोंट नो हाउ राइट इट इज, कि कहा कि राम जी और रावण में बेसिक अंतर क्या था। कहा कि रावण बहुत अपने समय में विद्वान ज्ञानी थे और सब कुछ का ज्ञान था और मंत्रों का और वगैरह वगैरह सब, लेकिन उनके पास शिक्षक नहीं था।
He didn't have a teacher and that was the difference. और इसी कारण से उनके अंदर वो सारी चीजें नहीं आई जो नैतिकता के नाम पे होती है, वैल्यूज के नाम पे नहीं होती है, और in the absence of values and morality he failed. And this was आपको एक चाणक्य का घर एग्जाम्पल है कि एक तख्ता पलट पूरी साम्राज्य, इतने बड़े साम्राज्य की तख्ता पलट भी चाणक्य के कारण हुई, जो खुद गुरु थे, उनकी मेंटरशिप में ही चंद्रगुप्त ने इतने बड़ा राज हासिल किया. तो वो भी वन बस एग्जाम्पल है. इंडिया हैज लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स कि टीचर ने और मेंटर ने क्या वैल्यू और क्या. Yes, it's important to have the kind of a human teacher, humanizing things, because when you interact, then things become different. Yes. Sir, I want to ask that in many part of rural area in India, there is still shortage of skilled teachers. So, in that case, the AI can fill that gap. So, what do you think, sir? It True. can or not? AI can fill the gap, and AI can be used as an assistant. When you use it, see, a teacher has also has to undergo a change. With the passage of time, teachers have to read, teachers have to visit library, teachers have to update themselves with knowledge, they have to get into different types of discussions. All these things are there. But with that, he has to take the assistance of AI. So AI has to be used as an equipment, as a tool to develop his teaching. He should not be replaced with AI. You were saying something. Yes, sir. I would like to mention here, something, extraordinary. That, sir, we do not be, very connected with emotions. Like we have speak about mythologies and different kind of stories, and we have give example. I think that at that time it was good. At that time it was true. But in the age of this era, we can't, we can't type ourselves in this kind of emotion, because world is very fast. If we want to do competition with, this, in this world, then definitely we have to, apply these kind of, tools, whether we can't AI, whether we can't, any other kind of, aspect. So we have to implement this, because in America, there's an alpha kind of school have started, where, teachers play not very important role, where students always, use, tab. Their students always use smart classes, with a smart board. So somewhere or the other, sir, we have to be very, very updated. Yeah, here I would like to tell you, Manish, I beg to differ with you a little bit. You see, using the tools and using your creativity, these are two different things. See, there what happens, students are taught to get updated with the new technology, to master the new technology, like smart board, initially it used to be OHP, now they have a smart board, now they have tab, they have system, they have AI, they have Gemini, they have deep search, all these things are there. These are the tools, these are not teachers, but to develop your creativity, your thinking. अदरवाइज एवरीबडी विल क्रिएट पोएम फ्रॉम एआई, कि कविता बनानी है तो आप एआई से कविता बना दो. और कुछ इस प्रकार की कविताएं, जैसा कि अभी अभी हमने देखा कि एआई के नाम पर हम लोगों ने गाने बनाने लगे, नेशनल सॉन्ग एंड राष्ट्रीय गीत, और उसमें स्पेलिंग और उसकी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक, शस्य की जगह सस्य बोल रहे हैं. नाउ दीज आर द ब्लंडर्स. Yeah, no, I know, sir. AI is committing that blunder. Yes, sir. Human being will not commit. Human being will say shasya shyamlam, but AI will say sasya. But sir, I would like to say something here different, that knowledge, from where you have got knowledge, you have to earn knowledge. जहां से भी आपको ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलना चाहिए. हमारे पास सर दो बहुत बड़े एग्जाम्पल है. आज सर हमारा देश खुद का फाइटर जेट और खुद का सर जो इंजन है वो नहीं बना पाया, जबकि अगर चाइना को देखा जाए तो उसने रिवर्स इंजीनियरिंग करके दूसरों की तकनीक को लेके उसको सीख के दोबारा वो करके उसने खुद का अपना जेट बना लिया. टीचर्स नॉट एआईज, टीचर्स नहीं. आपको एआई दे दिया जाता है. मनीष, मैं सबके सामने एक बात कहता हूं, आपके पास एआई दे दिया जाता है और कहा जाता है कि एक अच्छा गाना बना के बता दो, और सबके पास एआई है. मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों में सबसे बेहतर गाना मैं बना सकूंगा. अब आप कहोगे क्यों? कारण भाई सबके, आपने प्रॉम्प्ट क्या डाला? क्या आपको राग का आइडिया है कि हमें इसमें राग मॉलकॉस डालना है कि बागेश्वरी डालना है? क्या आपको आइडिया इस बात का है कि इसमें हमें पखावज डालना है कि शतंतु डालना है कि पिचर डालना है? आप तबला डालोगे. तो
आपके पास उसका नॉलेज तो होना चाहिए. टीचर विल गिव यू. That can be possible in initial stage. I remember that when computer have introduced in India, there was classes of cut, copy, paste, of paintings, and these kind of things were there. But now these days, each and every hand mobiles, and each and every person can run mobile easily. So this is the first of the world. This is the real position of the world, and we have to be run with this world. So we after some time in AI in very initial stage, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बिल्कुल शुरुआती दौर में है, बट व्हेन इट विल डेवलप इट विल मेक वंडर. ये बहुत बड़े बड़े आश्चर्य करेगा. और कहीं ना कहीं सर जो एक जैसे मोबाइल हमारे जीवन का एक हिस्सा हो गया है, कट कॉपी पेस्ट कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी ना. उसके लिए हमें कोई कोर्सेज करने पड़ते. पहले कोर्सेज होते थे, हम लोग फीस दे के जाते थे, कंप्यूटर छूने मिलता था, देखते थे ये कंप्यूटर. लेकिन जो शख्स वो नहीं सीखा वो आज वो सिस्टम से बाहर है. यस डेफिनेटली. तो हमें एआई को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के लिए, एक डेवलप टेक्नोलॉजी के लिए मोबाइल हाथ में रखना और तेज फोटो खींचना और तेज चलाना इज नॉट एफिशिएंसी. बहुत फास्ट मोबाइल को फिंगर से मूव कर लेना इज नॉट एफिशिएंसी. लेकिन उस पर एक बड़ा काम आप कर सकते हो जो सब लोग नहीं कर सकते. दैट्स एफिशिएंसी. यस सर, आई नो दैट समवेयर और द अदर नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, बट आप उससे आप दूर रह के आप तो इस दुनिया में नहीं रह सकते. आज ये चीज प्रूव हो गई. ये बात हम यहाँ पे कर नहीं रहे. हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं क्या ये टीचर्स को रिप्लेस कर रहा है क्या. ये बात हम कर रहे हैं कि टीचर्स को रिप्लेस कर रहा है. मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी को जानने के लिए भी टीचर्स को भी अपडेट होना पड़ेगा. अदरवाइज टीचर्स को वो रिप्लेस नहीं करेगा, वो रिजेक्ट कर देगा. यस सर, एज यू सेड दैट AI हैज द पोटेंशियल assistant for a teacher. Sir, I agree with your opinion. Sir, AI is a great platform for multilinguality and multidisciplinary, and it has a limitless potential. But if we use AI as a tool in our hand, then it can produce a better result that we want. Sir, आज से कुछ वर्ष पहले एग्जामिनेशन के पहले लोग बाजार में जाकर 20 क्वेश्चन लेके आया करते थे. yes. आप वो 20 क्वेश्चन रट लोगे, 10 आ जाएंगे, पास कर जाओगे, अच्छे नंबर मिलेंगे. जीवन में क्या करोगे क्योंकि विषय को नहीं पढ़े हो. yes. तो इनको आप अपने ऊपर इतना हावी ना होने दें कि उनके आंसर्स को उठा के कट कॉपी पेस्ट लगा दें. एआई से कहा कि इस डेटा को अच्छे से टेबल बना के दे दो. उसने 2 मिनट में टेबल बना के दिया, आपने चिपका दिया. क्यों नहीं सीखा अपने से जाके टेबल एक्सेल पे कि टेबल कैसे बनाया जाता है. As you said that you have to learn and you have to give this command to your student कि हम इस प्रकार से उसको अदरवाइज आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो. yes, sir. है ना सर. समाज शास्त्र का एक बहुत फेमस कोट है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है. समाज में जन्म लेता है, समाज में परिपक्व होता है और समाज में विलीन हो जाता है. तो समाज हमारे अंदर सही गलत नॉर्म्स जो पुट अप करता है. आज देखें, अगर आप एआई से कोई भी क्वेश्चन पूछते हो वो बहुत डिप्लोमेट आंसर देता है. वो सही गलत क्या की वो सोच है उसी को बंद कर देगा. आप उससे पूछ के देखिए क्या रेप सही है, क्या रेप करने वाला सही है, तो उसका आंसर क्या रहेगा. आप समझिए उसकी परिस्थितियां भी क्या होंगी. तो आपने हर चीज को इतना डिप्लोमेट बना दिया. एक टीचर सिखाता है कि वो चीज गलत है, क्योंकि सोसाइटी बताती है कुछ चीजें गलत हैं, इट मीन्स वो स्ट्रांगली उसको अपोज करना चाहिए. चीज गलत की है, टीचर उसी से आपको प्रेशराइज करता है कि आप ये चीज तो नहीं करना चाहिए. ह्यूमन रैशनैलिटी नहीं है उसमें. यस सर. वो यस और नो, गलत और सही पे नहीं बात करता है. नहीं कर हर चीज से न्यूट्रल आंसर देता है. लेकिन जब हम अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं तो उनके अंदर इमोशन, उनके अंदर गलत सही की बात, उनके अंदर नैतिकता, उनके अंदर ज्ञान, ये तमाम चीजें, उनके अंदर अनुशासन, उनके अंदर पंक्चुअलिटी, ये सब भी टीचिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है विच एआई डज नॉट गिव. ये भी हाँ सर, जो एआई है उसमें एक्यूरेसी की बहुत ज्यादा कमी है. वो हमेशा स्टूडेंट को उतना ही बताता है जितना उसका काम का होता है. और जब स्टूडेंट्स उस चीज को मतलब उन पे आंसर नहीं बनते तो कभी वो उसकी नेगेटिविटी नहीं बताते. वो हमेशा उसको पॉजिटिव ही बताता है, उसकी कभी नेगेटिव फोकस नहीं करता है. और जो टीचर्स भी हैं वो भी सिर्फ जो अपना जो टास्क वगैरह है उसको पूछ के बच्चों की अकाउंटेबिलिटी तो है उसको तो बढ़ाते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से उसका वो नहीं कर पाता. चलते हैं इस डिबेट को आगे बढ़ाते हुए. towards the end of this debate, let's see what Manish has to give his final statement on AI.
Sir, I think that I have done discuss with one army man कि जो AK-47 इतनी परफेक्ट क्यों है और भारत की जो इंसास राइफल है वो अभी इतनी परफेक्शन की तरफ क्यों नहीं बढ़ी। तो उन्होंने जो आंसर दिया वो बहुत बढ़िया कि जो AK-47 है इट वॉज नॉट डेवलप इन अ वन डे, वो एक दिन में नहीं बनी थी, सालों साल उसमें रिसर्च हुआ, सालों साल उसमें काम हुआ, फिर जाके वो AK-47 बनी है। सेम थिंग हैपनिंग विद इंसास राइफल। इंसास राइफल अभी डेवलपिंग स्टेज पे है और जिस दिन वो टॉप पे पहुंचेगी तो उससे खतरनाक और उससे बड़ी राइफल कुछ हो ही नहीं सकती। सेम थिंग इज गोइंग ऑन विद AI। नाउ आई हैव टोल्ड दैट AI इज इन इनिशियल स्टेज, अभी शुरू हुआ है 2 साल पहले 3 साल पहले AI को हम लोगों ने जाना है, अभी इनिशियल स्टेज पे है, न्यूट्रल आंसर देता है, कई बार कुछ गलत आंसर भी आते हैं, लेकिन व्हेन इट विल बी ऑन टॉप ऑफ द हिल देन इट विल बी द अनरिप्लेसेबल, इसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। देन वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट। हम केवल इमोशन से जुड़कर इन चीजों से दूर रहेंगे और बचने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली जो अभी तक होता आया कि हम लोग पीछे रह जाएंगे। Okay, a fast thing from Hari. As Manish sir has told, sir, I was also discussing with ChatGPT and Gemini and Google AI, and 3 of them they have answered AI will not replace in future also teachers, but AI plus teachers will be a powerful tool for teaching. Though it is true that AI cannot replace teachers, but there is a warning. इसे हम अपना महत्वपूर्ण उपलब्धि ना समझें जब एक टीचर ये सोचता है कि AI उसे रिप्लेस नहीं कर सकता। आने वाला समय 2 ही होगा और 2 ही प्रकार के टीचर्स होंगे, एक टीचर विथ AI और टीचर विदाउट AI। नाउ ए टीचर विथ AI विल सर्वाइव, अ टीचर विदाउट AI विल नॉट बी रिप्लेस्ड, विल बी रिजेक्टेड। मैं यहां रिप्लेसमेंट की बात ही नहीं कर रहा हूं, ही विल बी रिजेक्टेड। सो जो टीचर्स AI जानते हैं, क्योंकि उन्हें इस टूल को मास्टरी करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा में जैसा कि मैंने कहा कि नैतिकता है, संस्कार है, लेकिन साथ साथ में विषय का भी ज्ञान है। तो उस विषय के ज्ञान के लिए, उसकी मल्टीपल प्रकार की तैयारियों के लिए, उसकी एक्टिविटीज के लिए, उसके जितने भी टास्क दिए जाते हैं उसके लिए AI को मास्टरी करना जरूरी है। एंड इफ वी लैग बिहाइंड, वी विल लैग behind in our studies. This is very very important. स्टाइल रेडियो 90.4 FM चैनल पे आप हमें सुन रहे हैं और बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर आप मुझे देख पा रहे हैं। हम लोग आज अपना 100वां डिबेट कर रहे हैं। बड़े हर्ष के साथ और बड़े गौरव के साथ हम कहते हैं कि सैकड़ों स्टूडेंट्स इस डिबेट में शामिल हुए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं स्टाइल रेडियो 90.4 FM चैनल के सुरेंद्र गुप्ता जी को। इस टीम के 3 महत्वपूर्ण सदस्य हैं जो कि हमेशा हर डिबेट में साथ होते हैं। 2 जो हम आपके सामने बैठे हुए हैं, मैं और हमारे साथी मनीष सोनी, और तीसरा व्यक्ति जो बहुत महत्वपूर्ण है कैमरे के पीछे और ये सारे डिबेट की तैयारियां और करते हैं, वो है हमारे नरेंद्र अठिया जी। उनके बगैर ये डिबेट होना असंभव है, क्योंकि इस डिबेट के बाद सारी तैयारियां, इसकी तैयारी करके इसको अलग अलग चैनल्स पे भेजना, ये उनके द्वारा किया जाता है। तो हम 3 लोग इसके मुख्य पिलर है, जैसे आपके कैमरे के 3 स्टैंड होते हैं। लेकिन हम साथ में उन तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, विशेष रूप से कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स जो इस डिबेट में लगातार शामिल होते रहे, समय समय पे आते रहे, कुछ गेस्ट जो हमारे पास आते रहे, कुछ अतिथि हमारे पास आते रहे इस डिबेट में, और इस डिबेट को अभी यहाँ नहीं, यहाँ से और आगे लेके चलेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद हमें देखते रहने के लिए। अगले संडे फिर हम आपके पास होंगे एक नए विषय पर। धन्यवाद। जय हिंद।